afternoon to everyone. अपनादर श्लोक के अमन सुश्रोतों प्रणाम। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। I sincerely thank Youth Media Global Organization for inviting me to be a part of this meaningful workshop. It is privilege to interact with you all on the topic collaborative learning, implementing the jigsaw strategy in diverse classrooms. In today's classroom, effective learning happens through collaboration, inclusion, and active participation. The jigsaw strategy empowers learners to work together, share responsibility, and learn from one another, making the classroom more engaging and more inclusive. I would like to begin this workshop the immortal words of Swami Vivekananda. Arise, awake, and stop not till the goal is reached. Do you know? These words are not merely a call for personal success, but a powerful message for collective awakening and social responsibility. They remind us that young must rise above the indifference, awaken their inner strength, and continuously work for the welfare of society. This thought beautifully sets the foundation for today's theme, youth community engagement strategies for positive change. I would like to remind all of you that true change begins with the right intention, collective effort, and selfless action. When youth engage with their communities, they not only transform society but also discover their own purpose and strength. Dream big, think creativity, explore fearlessly, and innovate continuously. That is the path of a brighter tomorrow. I would like to stay with this shloka from Srimad Bhagavad Gita, अध्याय नंबर 2, श्लोक नंबर 47. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचित् मा कर्मफलेषु गुणो ते संगोत् स्वकर्मणि. What is the meaning of this shloka? Do you know the meaning of this shloka? Anyone? Anyone else? Please participate. This is the objective of the workshop. This is a two-way process. Already I have given the instructions. So now it is expected from you all that this is the minimum learning outcome should be there. जितना आपको समझ में आता है उतना बताइए. Assistant or you have some ideas, please contribute. গীতা পড়ছেন? না আমি জানি ইয়া কিছুটা জানি আমি যে যেরকম কর্ম করব সেরকম ফল পাবো এরকম একটা আছে. मतलब कर्म की हमें कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी है. Basically, जो meaning of this shloka, you have the right to perform your duties, but not to the fruits of your action. Do not the attain to results and never avoid your responsibility. अपने आप जो responsibilities हैं, जो पूरा करना है आपको, जो भी आपकी duties हैं, आपको उन्हें fulfill करना है. आपको ये ध्यान नहीं देना है कि इसका फल क्या होगा. This is this shloka is relevant to innovation. How to relate? True innovation arises from dedicated effort, curiosity, and fearless experimentation, not from the desire for immediate reward. This shloka reminds innovator and learner to focus on the process of creation and contribution, rather than on the outcome, nurturing a spirit of perseverance, creativity, and selfless pursuit of excellence. हमें अपने वर्क को बहुत अच्छे से करना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करना है. इनोवेटिव आइडियाज हमारे माइंड में आने चाहिए. डू यू नो इनोवेशन? गवर्नमेंट बहुत इस पर पैसा खर्च कर रही है. IIC आपने सुना भी होगा, इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल, इस पर गवर्नमेंट पैसा खर्च कर रही है. आप इससे वाकिफ हैं? इनोवेशन से लैटिन वर्ड इनोवेयर से बना है इनोवेशन, और इसका मीनिंग क्या है? टू मेक समथिंग न्यू, टू क्रिएट आइडिया समथिंग न्यू. आपका जो आइडिया है वो
चेंजेस आ रहे हैं, these are the example of innovation. आप मोबाइल यूज करते हैं, इससे पहले आप घर में टेलीफोन यूज करते थे जो कि एंटी हुआ करता था, अभी क्या है आप मोबाइल यूज करते हैं, एंड्रॉइड आईफोन यूज करते हैं, सब में कुछ ना कुछ चेंजेस दिखाई देते हैं। वो चेंजेस ही क्या है, इनोवेशन चीज तो है, आपने कुछ उसमें नया इनोवेट किया। टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस में दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस में कैसे इंपॉर्टेंट है, आप टीएलएम यूज करते हैं टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस में, क्यों यूज करते हैं, why you are using the TLM during the teaching learning process? स्टूडेंट को अट्रैक्ट करने के लिए, हाँ, स्टूडेंट को अट्रैक्ट करने के लिए, स्टूडेंट को अट्रैक्ट करने के लिए उनका जो फोकस है उसको एक साइड एक जगह अटेंशन को ग्रास्प करने के लिए। इसके अलावा ক্লাসটা আরো আরো বেশি যাতে সজীব করে তোলার জন্য। नॉलेज के लिए अच्छा, इससे एक टीचर को क्या फायदा होने वाला होता है, लर्नर के लिए तो है ठीक है, उसको नॉलेज मिल रही है और वो कुछ नया सीख रहा है, बट जो टीचर है उसके लिए कैसे इफेक्टिव हो सकता है टीएलएम बेसिकली हो सकता है स्टूडेंट को समझाने में सुविधा होता है, हेल्पफुल होता है, दिखा के समझा रहे हैं ठीक है। हिंदी do you know Hindi? Yes, ma'am. हिंदी बोलो। TLM, what is the full form of TLM? Teaching and everything. हाँ, बोलिए। Teaching learning material. Teaching learning material टीचर क्यों यूज करता है अपनी टीचिंग को, हाँ, ताकि टीचिंग को और बेहतर बना सके, इफेक्टिव बना सके, इजी गोइंग बना सके, क्योंकि जब आप स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं तो वहाँ पर कुछ कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट होते हैं, उनको हम इजी वे में पढ़ाने के लिए TLM का यूज करते हैं, और ये TLM एक टीचर की टीचिंग को इफेक्टिव बनाते हैं और टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस को इजी बनाते हैं, लर्नर के लिए सुटेबल होते हैं। अच्छा, ये टीचिंग जो लर्निंग मटेरियल होते हैं उनको यूज करने से पहले क्या टीचर को प्लानिंग करता है ना, क्या प्लानिंग करता है, लेसन प्लान के साथ वो प्लान करता है कि मुझे बनाना है, एक TLM बनाना है, और रिक्वायरमेंट मेरी क्या है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल किससे रिलेटेड होना चाहिए, टॉपिक से रिलेटेड। ऐसा ना हो टॉपिक कुछ और कह रहा है और आपका टीचिंग लर्निंग मटेरियल कुछ और कह रहा है, और ऐसा भी नहीं हो कि वो बच्चों के IQ लेवल से ज्यादा हो या कम हो, अपनी क्लास के IQ लेवल के अकॉर्डिंग हो। इसी के पर्सपेक्टिव में आज हम क्या करेंगे, जिक्सॉ स्ट्रेटेजी को सीखेंगे। आपने अच्छा, इससे पहले आपने कुछ एक्सप्लोर किया है जिक्सॉ स्ट्रेटेजी के बारे में? I encourage all participants to take an active part in this session, share your ideas and reflect openly so that this workshop becomes a valuable learning experience for all of us. ऐसा नहीं है कि एक वे प्रोसेस है, वन वे नहीं है, दिस इज अ टू वे प्रोसेस, इंटरैक्टिव सेशन है ये। So thank you once again, and I wish you all a productive and encouraging and enriching session ahead. So without further delay, let us begin today's workshop session and engage ourselves in collaborative learning. Once again, I extend my heartfelt thanks to the organizers, dignitaries and all the participants for part of this session. I hope this session will be insightful, interactive and professionally rewarding for everyone present here. Like आकृति वाजपेयी and Sophia is present here. तो इन दोनों के लिए भी कितना फ्रूटफुल होगा, कितना एक्सपीरियंस ये लोग गेन करेंगे, ये आफ्टर दैट हम कंप्लीट करने के बाद ही बता पाएंगे। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस हियर ऑन द बेसिस ऑफ कोलैबोरेटिव लर्निंग जिक्सॉ स्ट्रेटेजी। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कोलैबोरेटिव लर्निंग एंड कोऑपरेटिव लर्निंग? व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? And your answer in one line. दोनों में क्या डिफरेंस है, कोलैबोरेटिव एंड कोऑपरेटिव लर्निंग? व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? डरो नहीं प्लीज। कोलैबोरेटिव सब
कोलैबोरेटिव लर्निंग में स्टूडेंट्स मतलब एक साथ सीखते हैं और कोऑपरेटिव में सिखाते भी एक दूसरे को। पीपीटी शेयर था आपको? शेयर कर दिया समझ। पीपीटी आपने देखा, उसमें कुछ समझा कि एक जगह जिक्सॉ स्ट्रेटेजी में लिखा है, जिक्सॉ स्ट्रेटेजी इज एन कोऑपरेटिव अप्रोच या टेक्निक लिखा है। तो ऊपर आपका थीम जो है कोलैबोरेशन लिखा है। तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन नहीं आया, आपने थोड़ा सा गो थ्रू नहीं किया कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस इन दीज टर्म्स? What is the was basic sent to difference? them in advance of the day. I think minimum Why 7 days before. So it's your duty to go through. Girls? It's mentioned the theme is on collaborative learning, but within the slides it is written that it's cooperative also. So how is it related to each other? Both cooperative and collaborative. So what is the similarity and what is the dissimilarities? कोलैबोरेटिव लर्निंग में होता है कि सब एक साथ मिल के काम करते हैं, उसमें किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड नहीं होता। मान लीजिए कोई अगर कमजोर है किसी काम में, हम उसको हेल्प करेंगे। कोऑपरेटिव लर्निंग में होता है क्या, हर एक को अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया होता है, तो मिलकर काम करते हैं, लेकिन मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड किया होता है हर एक चीज। दोनों टर्म्स एक दूसरे से कोरिलेट है। कोऑपरेटिव लर्निंग क्या है? एक बड़ा वेव, जैसे हम स्ट्रेटेजी आप पढ़ते हैं टीचिंग लर्निंग के, आपका ट्रेनिंग कोर्स है ना, बीएड स्टूडेंट्स आप ऐसे समझ लीजिए Some have already completed their BEd and some are just freshers after graduation. आप टीचिंग का स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, स्ट्रेटेजी बनाएंगे, उसमें कुछ टेक्निक्स लगाएंगे, टेक्निक के अंदर कुछ टूल लगाएंगे, डिवाइसेस लगाएंगे, इसको कंप्लीट करने के लिए, स्ट्रेटेजी के गोल को कंप्लीट करने के लिए। यहाँ बेसिकली क्या है कि कोऑपरेटिव टेक्निक में ही हम क्या लगाते हैं, जिक्सॉ में कोलैबोरेशन। जिक्सॉ इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 3 aspects. फर्स्ट इज होम ग्रुप, सेकेंड इज एक्सपर्ट ग्रुप। आपने कुछ पढ़ा, उसमें लिखा था ना, ये सारा जो बता रही हूँ लिखा हुआ है, लिखा है कौन कौन सा है टर्म? Please go through your slides. It has been posted in the official WhatsApp group by the admins. इंस्ट्रक्शन नहीं हो पा रहा है आप लोगों से, मैं आपको Go through. While the workshop is going on, please go through the slides. स्लाइड्स आपने गो थ्रू की है या नहीं की है? पहले ऑनेस्टी से बताइए, Please be honest. की है? उसमें आपने They स्टेप्स are पढ़े? given in the group. Now it's up to Steps them to कौन go से through हैं? or not. कोई स्टूडेंट आएगा जो मैं बोलूं बोर्ड पर लिख सके? एनीवन? Strategy, how many steps are there? 7. मेन चीज आपने इसमें क्या पढ़ी? क्या क्या है इसमें? फर्स्ट वन इज आप यहाँ पर मेन की बात करेंगे, यहाँ पर होम ग्रुप की बात करेंगे। पहले हम किसका बात करेंगे? होम ग्रुप को, देन एक्सपर्ट ग्रुप और
किस चीज की शेयरिंग, किस चीज की शेयरिंग कर रहे हैं, जिसका स्ट्रेटेजी में किस चीज को शेयर कर रहे हैं, different ideas for the topic. डिफरेंट आइडियाज रिलेटेड टू the गिवन टॉपिक। मैंने कहा ऑपरेटिव में क्या करेंगे, टीचर इन्वॉल्व होगा। टीचर क्या करेगा, टीचर क्या करते हैं इसमें, टॉपिक को असाइन करते हैं। लाइक यहाँ पर हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, क्या हाउ मेनी स्टूडेंट्स, कोई भी स्टूडेंट काउंट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। लाइक मैंने कहा 50 स्टूडेंट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 50 स्टूडेंट्स आर लाइक सपोज दैट 50 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट हियर। तो हमने क्या किया, यहाँ कितने ग्रुप बन सकते हैं, 5 5 में कितने ग्रुप बन सकते हैं, 10 ग्रुप टोटल ग्रुप 10। अब इस 10 ग्रुप में हमें क्या करना होगा, लेटर्स आपने एक पीपीटी में देखा होगा, कुछ लेटर असाइन किए गए हैं, हर एक स्टूडेंट को लेटर असाइन किया गया है। लाइक मेरे पास ग्रुप नंबर 1 है, ग्रुप नंबर 1 में मैंने एक स्टूडेंट को एक अल्फाबेट असाइन किया है। वो अल्फाबेट क्या है, A B C D एंड E। ये 5 लेटर असाइन कर दिए। ये क्या है, अपने आप में एक स्टूडेंट है। क्या है ये, एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट A, स्टूडेंट B, स्टूडेंट C। ऐसे ही मैंने क्या किया, आप लोगों को दूसरे ग्रुप को भी कर दिया। यहाँ पर ग्रुप नंबर 3 है एंड सो ऑन। तो देन A B C D एंड E, ये क्या है, स्टूडेंट है। इसके साथ में दूसरा हमने क्या असाइन करना है, टॉपिक। क्या असाइन करेंगे, टॉपिक होगी। टॉपिक मैंने एक लिस्ट सर को दी, वो सर टॉपिक असाइन हुए हैं क्या, इन लोग को टॉपिक असाइन हुए हैं। I was not aware of the topics. However, they have rehearsed on their subject matter. Only subject matter. Yeah. Okay. So, CR of this class, who is CR? Class representative कौन है इस क्लास का? Puri, you are representative? CR कोई तो होगा? Yeah, he's there. Boys, mostly they are leading the class. CR को कोई देती है मेरे पास। हर एक ग्रुप में 5 स्टूडेंट्स रखेंगे। ऐसे हमें बिठाना A B C एक ग्रुप, फिर दूसरा A B C D E, ऐसे बिठाओ। আমাদের তো গ্রুপ বানানো আছে, ग्रुप फॉर्मेशन আমাদের গ্রুপ বানা আছে, গ্রুপে বসতে পারবো। मेरी सीक्वेंस जो है थोड़ी सी अभी हम अलॉट कर देंगे। ये जो बच्चा है इसका नाम है आपका बेटा, আমাদের তো গ্রুপ বানানো আছে। ये A है, A बैठे प्लीज, A B अपना याद रखना लेटर, A B C D E आपका E। देन यहाँ से A B C D एंड E। लेटर कैसे याद रखोगे, अपना ग्रुप एक साथ बैठना है। पहले तो ग्रुप अपना एक साथ बनाइए, एक साथ बैठिए। रजिस्टर पेन सबके पास होना चाहिए, विदाउट रजिस्टर पेन कोई भी कलर चलेगा, पेन आपके पास
रात ले लिया। ছাব্বিশ জনের মতো আছে দেখতে পারি। स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा 3 है ना, वो 3 अलग कर लेता हूँ, 3 की अलग ड्यूटी लगाएंगे। केवल वहाँ पर 30 स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व 6 ग्रुप बन जाएंगे और वो 3 स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा में जो है वो मुझे इधर बता दीजिए कौन से एक्स्ट्रा में। ABCD सबको ऐसे दिखाइए जैसे अभी हमने ग्रुप बनवाया। एक ग्रुप ये हो गया ग्रुप नंबर 1। आप अपना याद रखिए आपका ग्रुप नंबर 1 है, ये ग्रुप नंबर 2 है, देन ग्रुप नंबर 3 A B C D E। ऐसे बेटा सबसे आप अलॉट पहले नंबर का इधर से राइट हैंड साइड से लेफ्ट साइड से A है, देन लेफ्ट का B है, A B C D E। सबके पास रजिस्टर पेन होना चाहिए। सबको टॉपिक अपने अलग अलग असाइन करेंगे। पहला जो लेटर है A, जितने भी A हैं वो अपने टॉपिक लिखिए। मीनिंग ऑफ कोलैबोरेटिव लर्निंग। मीनिंग ऑफ कोलैबोरेटिव लर्निंग। सभी लोग अपना टॉपिक लिखिए। जितने भी A हैं, हर एक ग्रुप में A स्टूडेंट है सब ग्रुप में। जितने भी A हैं उनका टॉपिक क्या है? मीनिंग ऑफ कोलैबोरेटिव लर्निंग। B जितने भी हैं उनका है इम्पोर्टेंस ऑफ। 3 एक्स्ट्रा स्टूडेंट कौन है? एक्स्ट्रा स्टूडेंट है। एक्स्ट्रा स्टूडेंट कौन है? डिसिप्लिन को भी मेंटेन करना है। मीनिंग ऑफ कोलैबोरेटिव लर्निंग बी लिखिए। बी जिनका भी है इम्पोर्टेंस ऑफ कोलैबोरेटिव लर्निंग। इम्पोर्टेंस ऑफ कोलैबोरेटिव लर्निंग। टाइम की शॉर्टेज है लेकिन हम एक पीपीटी यहाँ पर बताएंगे अभी साथ में। सी जितने भी है, जितने लेटर मैंने सी असाइन किए हैं, स्टेप्स ऑफ जिक्सॉ स्ट्रेटेजी। स्टेप्स ऑफ जिक्सॉ स्ट्रेटेजी। डी किसको असाइन हुआ है? जितने भी डी हैं और डी की हम बात कर रहे हैं। रोल ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट्स। रोल ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट किसमें रोल? जिक्सॉ स्ट्रेटेजी में। जिक्सॉ स्ट्रेटेजी में टीचर का और एक स्टूडेंट का क्या रोल, ये आप अपना लिखेंगे। इस पर नोट्स बनाने हैं आपको, एक दूसरे को पढ़ाना है। अभी बताएंगे कैसे पढ़ाना है। रोल ऑफ लास्ट में टॉपिक 5 यानी कि ई क्या लिखेगा? एडवांटेज एंड
एडवांटेज, जितने भी एडवांटेजेस हैं वो एडवांटेजेस एंड चैलेंजेस, एडवांटेजेस एंड चैलेंजेस ऑफ जिगसॉ स्ट्रेटेजीज, जिगसॉ स्ट्रेटेजी। इनको पीछे जो बात है इनको A B C D E एंड नंबर ई, ठीक है আমি ई। सबको अपना टॉपिक क्लियर है? सबने लिखा टॉपिक? कोई तो एबीसीडी তোমার সাতজন, আমি তো बी ए मीनिंग ऑफ कोलैबोरेटिव लर्निंग। सबको अपना टॉपिक क्लियर है? आप समझ लीजिए यहाँ पर मैम बोर्ड पर एक का टॉपिक लिखिए, मीनिंग ऑफ ए टॉपिक। बात नहीं, अभी समझ लीजिए मीनिंग ऑफ कोलैबोरेटिव लर्निंग। यहाँ से देख कर लिखो बेटा। अब आपको इसमें क्या करना है? बेसिकली आपको यहाँ पर एक दूसरे को पढ़ाना है। कैसे पढ़ाओगे? जो ए है टॉपिक, ए बच्चे को असाइन किया है, वो टॉपिक किसको पढ़ाएगा? बी को पढ़ाएगा। यानी कि जितने भी बाकी के, मतलब ऐसा नहीं है केवल बी को पढ़ाएगा, वो बी को भी पढ़ाएगा, सी को भी पढ़ाएगा, डी को भी और ई को भी। ऐसे ही जिसको टॉपिक बी असाइन किया है, वो जितने भी मेंबर्स हैं उनको वो टॉपिक पढ़ाना है एक दूसरे को। यहाँ पर क्या है? पीयर टीचिंग कर रहे हैं, एक दूसरे को पढ़ा रहे हैं। एक बार में आप एक कंडीशन में टीचर है, दूसरी कंडीशन में आप लर्नर है, स्टूडेंट है। तो यहाँ पर लर्निंग कैसी हो रही है? वी विल लर्न टुगेदर। एक दूसरे के साथ हम लर्न कर रहे हैं, और जब एक दूसरे के साथ लर्न करते हैं तब क्या होता है? वी लर्न मोर। आप एक टॉपिक एक बार में पढ़ रहे हैं, लेकिन आपके साथ में जो 4 मेंबर हैं वो आपको बाकी के 4 टॉपिक भी पढ़ा रहे हैं। जैसे आप एग्जाम में करते हैं, फ्रेंड्स मिलकर 5 यूनिट क्या कर लेते हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। एक फ्रेंड आपका 1 यूनिट पढ़ेगा, दूसरा पढ़ेगा, तीसरा पढ़ेगा, ऐसे 5 यूनिट आपने कवर कर लिए। आपको एक साथ 5 यूनिट नहीं पढ़ने को मिले, आपने क्या पढ़ा है? केवल 1 यूनिट, लेकिन बाकी की जो यूनिट थी आपके फ्रेंड्स ने आपको पढ़ा दी। आपसे क्वेश्चन मैं पूछूंगी, इसलिए हमने आपसे कहा आप नोट्स प्रिपेयर करिए, एक दूसरे को पढ़ाइए। मैं आपको टाइम दे रही हूँ, उसमें बात नहीं करना है, एक दूसरे को पढ़ाना है। ये हमारा क्या है जो हमने बनाया है अभी? होम ग्रुप। अभी ये दोबारा से मैं मर्ज कर दूंगी, ध्यान से सुन लीजिएगा। अभी दोबारा ये जो ग्रुप बनेगा वो एक्सपर्ट ग्रुप बनेगा, वो क्या हो जाएगा? मर्ज। वो कैसे हो जाएगा? मर्ज हो जाएगा। मर्ज होने के बाद में जितने भी ए हैं वो मैं एक जगह कर दूंगी, जितने भी बी हैं वो एक जगह, जितने भी सी हैं वो एक जगह। ऐसे ग्रुप इतने ही बनेंगे जितने अभी बने हुए। कितने ग्रुप हैं? 1 2 3 6 बने ना, 30। 3 स्टूडेंट्स जो एक्स्ट्रा में हैं, एक वहां लिख रहे हैं, 2 और कौन है, एक आप है। आप डिसिप्लिन को मेंटेन करेंगे, आप ऑब्जर्व करेंगे कि बच्चे पढ़ा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, आपकी ड्यूटी है। आप अब सब ग्रुप को, ये नहीं कि ये मेरा फ्रेंड है वो मेरा फ्रेंड है, उसकी शिकायत नहीं करनी है। यहाँ पर आपको एज अ ऑब्जर्वर काम करना है, पढ़ाना है, एक दूसरे को पढ़ाइए। आपको केवल 10 मिनट मिले हैं, 10 मिनट में आपको सभी को एक दूसरे को पढ़ाना है। स्टार्ट योर एक्टिविटी। स्टार्ट। नोट्स आपके बने होंगे, और इसको फुल में कर खाली या फुली। अब पहला वाला आगे
দিলেও হবে রে। बस अभी हम डिस्कशन आपस में करिए, लेकिन टॉपिक से रिलेटेड। जो आपको टॉपिक असाइन है उन टॉपिक को आप ऐसे लिख लो। जो टॉपिक आपको असाइन है Your advantages and challenges of Jigsaw method strategy. Advantages and सभी challenges. बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे जो टॉपिक Advance and challenge. और एक दूसरे को आपको पढ़ाना भी टीच भी करना है। এখানে আছে তো দেখে নে। टॉपिक असाइन है सबको, और जो टॉपिक असाइन है आपके वो इसी से रिलेटेड है। हो गया? देखिए इसमें सारा आउटकम भी लिखा हुआ है। ये आउटकम क्या है? देखिए पहले आपको ये समझना है वर्कशॉप के ऑब्जेक्टिव क्या है। हमारे वर्कशॉप के ऑब्जेक्टिव वो फुलफिल होने चाहिए। पहला ऑब्जेक्टिव है अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कोलैबोरेटिव लर्निंग। अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कोलैबोरेटिव लर्निंग। ये से रिलेटेड मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगी एक्टिविटी के एंड में। एक्सप्लेन द जिगसॉ स्ट्रेटेजी, ये भी पूछेंगे आपसे। अप्लाई द जिगसॉ स्ट्रेटेजी इन डाइवर्स क्लासरूम। मींस के मेरी क्लासरूम कैसी है? डाइवर्स है। डाइवर्स इन द सेंस कि आपकी क्लासरूम में कोई भी डाइवर्सिटी का एस्पेक्ट हो सकता है। मींस के लैंग्वेज के बेसिस पर स्टूडेंट डाइवर्स हो सकता है, उनका बैकग्राउंड अलग अलग हो सकता है, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के बेसिस पर अलग अलग स्टूडेंट हो सकते हैं, रीजन के बिहाफ पर अलग अलग स्टूडेंट्स हो सकते हैं। इवन उनके जो आईक्यू है उस आईक्यू के बेसिस पर स्टूडेंट्स भी अलग हो सकते हैं। लाइक आपने सुना होगा कि टर्मन ने एक टेबल दिया है आईक्यू का। उस टेबल में क्या लिखा है? कुछ स्टूडेंट्स जीनियस हैं, कुछ एवरेज हैं और कुछ बिलो एवरेज हैं। तो वो भी डाइवर्सिटी हो सकती है। CWSN, ये टर्म आपने सुना होगा। CWSN, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। कोई स्टूडेंट ऐसा भी हो सकता है जिसकी नीड कैसी है? स्पेशल नीड है। मीन्स कि उसको अगर वो ब्लाइंड है तो वो किससे पढ़ सकता है? वो ऐसे नॉर्मल आप क्लासरूम में बिठाकर उसे पढ़ाएं तो वो नहीं पढ़ सकता। वो किससे पढ़ेगा? कौन सी स्क्रिप्ट होती है? नाम बताइए। एक ब्रेल। गुड। ब्रेल स्क्रिप्ट से आप उसको पढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर नीड कैसी है? स्पेसिफिक है, अलग है। तो हमें पढ़ाने का जो पैटर्न को कैसा करना होगा? डाइवर्स करना होगा। मीन्स हमारा जो लेसन प्लान है, लेसन प्लान कैसा होगा? इंक्लूसिव लेसन प्लान होगा। तो हमारे जो भी हमारी डाइवर्सिटी है उसमें आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं जिग्सॉ स्ट्रेटेजी को? इसको प्रमोट करना है। जैसे कि हमारी NEP 2020 भी इसको प्रमोट करने की बात कह रही है। इंक्लूजन को, समावेशन को। आप किसको समाहित करें? सभी बच्चों को। जैसे पहले क्या होता था? इग्नोर किया गया ऐसे बच्चे को जो हैंडीकैप था। बल्कि मेरा मानना है हैंडीकैप स्टूडेंट नहीं होता है। हैंडीकैप कौन होता है? जो ये मानता है और हैंडीकैप उसको कौन बनाता है? हमारी सोसाइटी बनाती है। लाइक एक बच्चे को पोलियो है, वो सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता, वो किससे जाएगा? व्हील चेयर से जाएगा क्लासरूम तक। आपके क्लासरूम तक पहुंचने के लिए अगर स्कूल में रैंप नहीं है, लिफ्ट नहीं है, तो किसने उसको हैंडीकैप बनाया? लोगों ने, सोसाइटी ने, हमारे सिस्टम ने उसको
बना दिया। कोई भी इंडिविजुअल हैंडीकैप नहीं होता है, ठीक है, राइट। इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी, हैंडीकैप, ये तीनों टर्म अलग अलग होते हैं। एक फिंगर कट गई, पहले नॉर्मल हैंड या वर्क करता था, ये हमारा थंब नहीं रहा, क्या हुआ? दिस इज द प्रोसेस ऑफ इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट आ गया, क्षति हो गई किसी एक ऑर्गन की। उसके बाद आप जो डेली बेसिस पर वर्क करते थे कि मैं माइक पकड़ रखती हूँ, अगर मैं ये थंब नहीं होगा तो माइक नहीं पकड़ सकती, होल्ड नहीं कर सकती आसानी से, तो क्या हुआ? डिसेबिलिटी हो गई। लेकिन अगर आपने रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं कराए तो आपने उस इंडिविजुअल को क्या बना दिया? हैंडीकैप बना दिया। तो हैंडीकैप हमारी सोसाइटी, हमारा सिस्टम बनाता है, कोई भी इंडिविजुअल हैंडीकैप नहीं होता है। इसीलिए एनईपी 2020 ने इस चीज को प्रमोट करने की बात की है कि हमें समावेशन पर ध्यान देना है, हमें कॉपरेशन पर ध्यान देना है एंड एक्टिव लर्निंग को। आपने एनईपी 2020 के 4th चैप्टर में देखा होगा, वहां पर इंक्लूसिविटी की बात हो रही है, इक्विटी की बात हो रही है। दोनों में डिफरेंस होता है, इक्वालिटी एंड इक्विटी। यहाँ पर मैंने सबको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं टॉपिक, ये क्या है? इक्वालिटी है। अगर इसको मैं चेक करूं कि किस कार्य की लेवल क्या है, किसकी नीड क्या है, किसको कितना समझ में आता है, दिस इज कॉल्ड इक्विटी। 5 लड्डू थे, मैंने कहा डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तुम्हारे सीआर से कहा हर एक बच्चे को एक एक लड्डू दे दो, वो क्या है? इक्वालिटी है। अब आप में से किसी स्टूडेंट ने कहा कि मैं तो मीठा नहीं खाता हूँ या नहीं खाती हूँ, मेरे को लड्डू की नीड नहीं है, बट दूसरे स्टूडेंट ने क्या कहा कि मैं 2 लड्डू खा सकता हूँ, मैं खा सकती हूँ। ये क्या है? इक्विटी है। आपने एक स्टूडेंट को नहीं दिया है क्योंकि उसको नीड नहीं है। तो एक टीचर को क्या देखना है? नीड, और ये देखना है बच्चे की नीड को कैटर करने के बाद उस नीड को हम कितना फुलफिल कर पा रहे हैं। यहाँ पर बेसिक आपको क्या देखना होगा कि हम सभी स्टूडेंट्स आपस में जो लर्निंग कर रहे हैं वो कैसी है? एक्टिव है। डिजाइन किस पर होगा? जिगसॉ स्ट्रेटेजी पर होगा। लेसन प्लान किस पर बनेगा? बेस्ड ऑन जिगसॉ। अच्छा, बचपन में कभी जिगसॉ खेला है कि नहीं? कोई मुझे बता सकता है? ये गेम भी है। कार्डबोर्ड देखा है, कार्डबोर्ड में कटिंग होती थी, पजल्स होते थे, उनको हम जोड़ते थे आपस में। इससे आपको रिलेट कर पाएंगे। इसमें एक पिक्चर भी आपने देखा होगा पीपीटी में, देखा है? ये स्टेप्स पढ़े आपने, देखिए इसमें है जिगसॉ बने हुए 1 2 3 4। ये सारे हमारे क्या है? होम ग्रुप है। अभी जैसे मैंने कहा ABCDE, एक ग्रुप में कितने स्टूडेंट्स हैं? 5 स्टूडेंट्स हैं, वो क्या है? होम ग्रुप है। अब मैं सारे बच्चों को मर्ज करने वाली 10 मिनट ओवर होने वाले, पढ़ा दिए आप सब लोग अपने अपने टॉपिक पढ़ा दिए, टॉपिक पढ़ाए आपस में। लर्न हो गए टॉपिक? टॉपिक लर्न हुए? आपका टाइम जो है वो लिमिट है और उस टाइम के बाद में आपको टाइम नहीं दिया जाएगा। এবার তার থেকে বেশি মানুষ যখন একসাথে কাজ করে কিছু শেখার জন্য বা কোনো প্রবলেম সলভ করার জন্য ज्यादा टाइम नहीं रहा है। आपने पढ़ा दिया एक दूसरे को, पढ़ाया कि नहीं? और अच्छे से बताइए, पढ़ाया नहीं? पढ़ाइए जल्दी से, 5 मिनट और एक्स्ट्रा दे रहे, पढ़ाइए जल्दी এখানে সবাই কি করে একে অপরের সাথে ইন্টারাকশন করে যাতে
responsibilities, collaborative learning encourage students to approach problems from the different angles and promote activity learning. When students work together, they are more likely to engage with the materials. पूरा सिलेबस करें अब जहां से बैठा वैसे बैठा रहेगा। ए जिसको मैंने असाइन किया था वो ए के पास आता जाएगा, जितने भी ए हैं वो सब ए के पास आते जाए और बाकी ए ज्यादा ए सब एक साथ आ जाए। जितने भी ए हैं ज्यादा ए अपना ए ध्यान रखना है कि मेरा ए है। ওই তো সেম চ্যাট জিপিটি তো সেমই হবে। আমি পিপিটি থেকে লিখলাম। इसको करने के बाद में आपको क्या करना होगा, रिटर्न करना होगा, रिटर्न टू होम ग्रुप भी याद रखना है। होम ग्रुप में कौन सा होगा,
इसीलिए इसको कोलैबोरेशन होने के लिए आपको अपनी सीरीज में अपने पार्टनर देना पड़ता है। अब आप सब एक्सपर्ट हो गए। ये जो मेरा नंबर 1 है उसमें कितने हैं? आपको अपने टॉपिक पर एक्सपर्ट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये अलग ग्रुप से आया, ये अलग ग्रुप से, ये अलग ग्रुप से आया, ये अलग ग्रुप से। आप पांचों अपने अलग अलग ग्रुप से हैं। अब क्या करना है? कोलैबोरेट करना है। कोलैबोरेशन में आपको क्या करना होगा? मीनिंग ऑफ कोलैबोरेटिव लर्निंग। सबको एक साथ आपको मीनिंग ऑफ कोलैबोरेट अपने नोट्स को शेयर करना होगा। तो भी आपने नोट्स प्रिपेयर किया है एक दूसरे से क्या करेंगे? शेयरिंग। तीसरा स्टेप क्या लिखा है? शेयरिंग। कुछ स्टूडेंट को हो सकता है अभी समझ में नहीं इधर गया होम ग्रुप, एक्सपर्ट ग्रुप, पेन किधर गया? क्या कर रहे हैं? शेयरिंग। शेयरिंग ऑफ किसका शेयरिंग कर रहे हैं? स्टडी मटेरियल जो भी आपने कंटेंट तैयार किया है, विषय वस्तु तैयार की है, उसको आप क्या कर रहे हैं? शेयर कर देना। शेयर करें 10 मिनट में आपका इसलिए और ये सब लिखा जा सकता है, बिलीविंग और इंटरनल कार्ड, सेफ्टी मैटेरियल, एडवांटेजेस ऑफ जिक्सो, एडवांटेजेस ऑफ जिक्सो। तुमने अलग कुछ लिखा है? तुम तो बहुत हाई फाई हो जाओगे हमारे से। हमने तो समझ नहीं आया। तो ये तो कहा है कि सबको मिल के एक बनाए, तो हाईवे बनो, हमारे ग्रुप को हाईवे बनाना है, एक नहीं तो अकेला अकेला हाईवे नहीं। तो हमें तो एक चर्च की मैं हाईवे नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि हमारे मेडल्स ज़्यादा हो ताकि समझाने में आसानी हो। जितना सिंपल होगा उतना समझ में आएगा। ठीक है, तुम सिंपल करो, ये अच्छी बात है। Advantages, disadvantages, like challenges and advantages. আমাদের সবাই তো সেম টপিক, ঠিক আছে? এই পাশে সবাই इतना बड़ा मत लिखो, पता नहीं
सेम ही तो होगा अगर एक ही है तो सेम ही होगा वही है वही लिखा है कुछ खास तो नहीं है। वो मेरा बेंगोली का इसके बाद क्या होगा itu tak asing di pos komunikasi একটি প্ল্যানিং কাজ করে অন্যকে শেখানোর মাধ্যমে শিক্ষার্থী শিক্ষার্থী একসাথে কাজ করে সাহায্য করে কমিউনিকেশন কথা বিষয়টি también muy like clinical हो जाएगा 10 मिनट में क्या सिलेबस पूरा पढ़ लोगे क्या 10 मिनट में पूरा क्या हो जाएगा इतना ही काफी वैसे भी ओ है तो आपका की बोलते हो ये ना हाँ हमारा आसाम का बंदा ये बोल दे आसाम इसका बात सुन के वो दीदी ये क्या बोल रहा है भाई वो हो जाएगा वो खुद तो से लगेगा मैं जा रहे ना नहीं हुआ है उन लोगों का उसका देखना लिखा है 10 पर लिखा है तो 2 करके याद करेंगे रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट मतलब क्या है रिक्वेस्ट मतलब ओवर टाइम ओवर नहीं काफी बाय बाय
Now, can one student share their experience? Can one student share their experience? सब अपने होम ग्रुप में है, ABCD सबको अपना याद है। मुझे ऐसे पूछ रहे हैं कि वाला स्टूडेंट किधर है? मैम यहाँ पर इधर एक यहाँ बैठना। यहाँ आकर अपना जो एक्सपीरियंस है इस स्ट्रेटेजी का वो शेयर कर सकता है। Anyone? Either you have to speak in English or Hindi. In both language. Because the instructions were given us. Well in advance, all the details were given to them by me. Then what will be the requirement? Practically, I was assuming that what will be the needs of the hour, and accordingly, I asked them to practice in English or Hindi. Yes or no? So anyone please come forward who has revised their topic well from the previous activity, have practiced in the class. So based on that and referring to today's activity, please come forward to present your topic. What you learned from your today's learning activity? Share their experience. एक ग्रुप से आपके 6 ग्रुप थे ना, किसी भी एक ग्रुप से एक स्टूडेंट शेयर नहीं कर सकता अपना जो भी आपका इस स्ट्रेटेजी को लेकर एक्सपीरियंस है उसे आपको शेयर करना है। अभी का एक्सपीरियंस शेयर कर दीजिए। কি বলবো যেটা আছে আমাকে বলুন না আমাদের টপিকটা Can you share? Can you share your experience? तो कंडीशन हो सकती है शेयर नहीं करने की, या तो कुछ भी समझ में नहीं आया या सब कुछ समझ में आ गया। ये बच्चा बता, क्या नाम है बेटा आपका? हाँ, तृप्ति। कैन यू शेयर? कैन यू शेयर योर एक्सपीरियंस? कोई भी एनीवन टॉपिक नहीं शेयर करना है आपको, इस स्ट्रेटेजी का एक्सपीरियंस शेयर करना है, नॉट टॉपिक। कोई गिवन जो टॉपिक है आपको उसको शेयर नहीं करना है। आप अपना जो एक्सपीरियंस हुआ कि हम कोलैबोरेशन में ज्यादा अच्छे से सीख सकते हैं या नहीं। What was challenging? What was challenging? You know one thing, whatever you know or you understood from today's activity, note down in few points and then you may read it out. This is the best possible manner. If you can't speak just out of your mind, it's better you note down the points that you understood from today's program and then you can read it out. Hurry up. कोई तो एक स्टूडेंट आना चाहिए। 30 स्टूडेंट्स में से एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है। Unfortunately, I got no students here, otherwise I would have been here. वहीं से आप शेयर कर सकते हैं, जरूरी नहीं अगर आपको यहाँ नहीं है दिक्कत हुई आप वहीं से शेयर कर सकते हैं। आपको जो भी एक्सपीरियंस हुआ है अभी तक, जो भी प्रेजेंट किया आपके सामने या आपने गो थ्रू किया, अच्छा ऑनेस्टली से बताइए सबने पीपीटी गो थ्रू किया है?
बड़ा बच्चा है, कुछ समझा से उससे भी जो भी रिफ्लेक्शन आपके माइंड में आ रहा है, जब हम टीचिंग डे की करते हैं तो बेसिकली हम 3 लेवल पर करते हैं। कौन कौन से लेवल होते हैं? पहला लेवल होता है हमारा मेमोरी लेवल, दूसरा अंडरस्टैंडिंग और तीसरा रिकर्सिव रिफ्लेक्टिव लेवल। तो हमारे यहाँ क्या है, तीसरे लेवल की हम बात कर रहे हैं। आपने जो सीखा है उसको कैसे रिफ्लेक्ट करना है, अपना एक्सपीरियंस को शेयर करिए। कि हम 2 लाइन में शेयर नहीं करना, 1 लाइन में शेयर नहीं करना, आपको अपने अकॉर्डिंग। मैंने कोई लिमिटेड नहीं किया है कि So on my behalf, who is ready to speak? अगर आप खाना चाहते हैं यहाँ से please speak to your class. You have to face your class and speak. This is not the correct posture. मेरा नाम खुशी मंगिया है, मैं फर्स्ट सेमेस्टर से ये प्रोग्राम किस प्रोग्राम से आपका कोलैबोरेटिव लर्निंग जीनियस मेथड। तो आज के एक्सपीरियंस में बोलना चाहती हूँ कि हम लोग तो एक पूरा कोलैबोरेटिव लर्निंग के लिए हम लोग हर कोई ग्रुप में डिवाइड होकर हम लोग एक्सपीरियंस हुआ। इससे हम लोग का एक्सपीरियंस क्या हुआ कि हम लोग सीनियर जूनियर मिल के फर्स्ट टाइम इस तरह से प्रोग्राम कर रहे हैं। हम इससे पहले भी किए हैं, मैंने इस बार कर रहे हम लोग से इससे फैमिली में बराबर से पूछ लूंगी, आप बंगाली में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। इससे हम लोग का हेल्प क्या होता है, हम लोग तो सीनियर छोटे बड़े सब मिल के हैं, इसमें हम लोग छोटे बड़े नहीं, हम लोग सब इक्वली है, हम लोग इसमें इक्वली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हम लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं। इससे क्या होता है, हर एक का माइंड ओपिनियन अलग अलग होता है। लेकिन इस जो कोलैबोरेटिव लर्निंग है, टीम है, जिसमें हम लोग सब इक्वली डिस्कशन कर रहे हैं, हर एक का अलग अलग ओपिनियन होता है, वो लोग हम लोग से शेयर कर रहे हैं। जो वो नहीं समझ पा रहे वो हम उनको समझा रहे, वो हम जो नहीं समझ पा रहे वो हमको समझा रहे हैं। इससे हम लोग बहुत ज्यादा हेल्प होता है एंड हम लोग में आपस में बॉन्डिंग होता है। सबसे बड़ा बात इनसे हम लोग किसी को छोटे बड़े नहीं फील करने देते, हम लोग इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं, सबको अपॉर्चुनिटी इक्वली होता है। सब में क्या होता है, पॉजिटिव थिंकिंग क्रिएट होता है एंड इससे क्या होता है, हम लोग हर एक का माइंड जो अलग अलग होता है, इससे होता है क्या, हम लोग इससे होता है कि क्रिएट न्यू थिंकिंग, हम लोग कुछ नया कर सकते हैं, इससे कुछ नया कर सकते हैं, राइट। नया कर सकते मीन्स कि कोई इनोवेटिव आइडिया भी जनरेट हो सकता है। जब आपने आपस में डिस्कशन किया तो उससे कोई न्यू आइडिया जनरेट हो सकता है। दिस इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग, दिस इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। बहुत ही अच्छा, क्लैप करिए। और कोई शेयर करेगा? हाँ, वेरी गुड। सबसे पहले मैं मैम को और आपको दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी कि ये अपॉर्चुनिटी हम लोगों के लिए लाए और मुझे प्रेजेंट करने की, मतलब मेरे खुद के ओपिनियन को आपके सामने रखने की जो मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद देती हूँ। तो आज के जो हम लोग किया है और जो काम किया, इससे यही मतलब मैं कहूँगा कि हमारे जो देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन से जो हमें डेमोक्रेसी मिला है, इससे शायद फुलफिल करने का मतलब कैसे फुलफिल करना है और सबके सामने कैसे प्रेजेंट करना है, खुद की जो टैलेंट है या कुछ भी है, स्किल हो चाहे कुछ भी हो, हम सबके साथ कैसे शेयर कर सकते हैं। हम सभी इक्वल है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, हम सभी इक्वल है। इससे हम प्रेजेंट कर सकते हैं, इसी तरह इस कार्य से हम कर सकते हैं। और तो और मैं कहूँगा कि हर सब में कुछ ना कुछ तो यूनिक होती है और वो स्वयं सबको पता नहीं पाते। तो अगर हम इस तरह से छोटे छोटे ग्रुप में अगर बांट के अगर ये सब मतलब खुद की हमने कुछ की अलग किया, उसने किस अलग किया, अगर हम सब एक साथ अगर ऐसे 4 ग्रुप बना के अगर हम लोग वो 4 के बीच अगर शेयर करें कि हमने क्या किया, उसने क्या किया, तो ऐसा हो सकता है कि हमारे अंदर जो खूबियां है उससे हम निकल के
मतलब पता लगा सकते हैं कि हमारा अंदर क्या खूबियाँ है। क्योंकि हम अक्सर ऐसा नहीं होते कि हमें पता नहीं होता कि हमारे अंदर क्या खूबियाँ है, लेकिन इस तरह से अगर हम सभी एक साथ करें तो हमारे अंदर का जो खूबियाँ है उसे हम डेवलप कर सकते हैं और पता भी लगा सकते हैं। और तो मैं कहूँगा कि इससे सोशल जो कम्युनिकेशन होता है ये भी डेवलप हो जाएगा। और तो अक्सर देखा जाता है कि कोई लोग ऐसे होता है जो इंट्रोवर्ट होती है, सबके साथ बातें नहीं कर पाते हैं, तो इससे हम लोग का वो इंट्रोवर्ट का जो मतलब ये तो अच्छा नहीं होता है ना। इंट्रोवर्ट सबके साथ बातें करना चाहिए ना, तो अगर ग्रुप होगी तो सबके साथ बातें भी करेंगे और सोशल डेमोक्रेसी जो होता है वो डेवलप हो जाएगा। और मैं कहूँगा कि शायद ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसा होता है मतलब सेल्फिश होती है कि हम ही ठीक रहे, सोशल में हम ही कुछ डेवलप करें, बाकी लोग कुछ भी करें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ऐसे करें तो हम खुद तो डेवलप हो ही जाएंगे, हमारे आसपास के जो लोग होंगे वो लोग भी डेवलप हो जाएंगे। वेरी नाइस। आलम बोलते तो आलमगीर ने देखिए बहुत अच्छी बात बताई कि आपका जब किस तरीके से आप लर्न करते तो सोशल स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स भी डेवलप होते। और कोई बताएगा? जीवन में फांसी हिंदी लिख सकते which is more easier to know in the whole in one time. And this is kind of a opportunity to communicating other and expressing ourselves to other. And yes, it is so helpful to expressing ourselves to other. What do you think about this topic? We will learn together. We will learn together. We will learn more. लास्ट में एक पीपीटी पे लिखा था ना, जब हम एक साथ सीखते हैं तो क्या करते हैं, ज्यादा सीखते हैं। आप अकेले बैठकर, जैसे अभी एक बच्चे ने बोला सेल्फिश, हमें से कुछ लोग होते हैं ना कि मेरे को आता है, कहीं जो चीज मुझको आती है वो दूसरे को नहीं आ जाए, तो यहाँ पर वो चीज ब्रेक डाउन हो जाती है। यहाँ पर आप जितना खुद सीख रहे हैं उतना ही आप दूसरे को सिखा भी रहे हैं, दूसरे से सीख आपने एंजॉय किया? अच्छा ये बताइए, मैम बहुत एंजॉय किया, बहुत अच्छे से। So today you prove that learning is more effective when we learn together. और collaborative learning builds confidence, responsibility and respect. हम रिस्पेक्ट भी एक दूसरे की करते हैं ना, ये तो नहीं कहते कि ये छोटा है ये बड़ा है, कोई शॉर्ट है कोई टॉल है, या कलर के बिहाफ पर हम एक दूसरे को डिस्क्रिमिनेट करते हैं, वो चीज सब खत्म हो जाती है। हम एक साथ जब एक ग्रुप में वर्क करते हैं तो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वल होती है, किसी एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सबको एक साथ सीखने का मौका मिल रहा है। तो without any further delay, let us conclude today's session with the belief that every learner has something valuable to contribute. When we learn, when we will teach, when we will learn, one more learn and कहना चाहिए कि twice a learn. Twice a learn क्यों कहेंगे हम? Why we call twice a learn? Twice a learn क्यों कहा हमने? दो बार सीखते। कौन से ग्रुप बने हुए थे? ग्रुप पहला कौन सा था? होम ग्रुप। दूसरा कौन सा था? एक्सपर्ट ग्रुप। आपने अलग अलग ग्रुप बनाए, पहला ग्रुप में आपने अपने मेंबर्स को सिखाया, दूसरे एक्सपर्ट ग्रुप में आपने क्या करा, जितने भी ग्रुप के मेंबर्स एकदम एक साथ क्या हो गए, मर्ज हो गए। तो अगर क्लोजिंग ऑफ दिस सेशन अगर मैं कहूँ तो मैसेज एक लाइन में क्या होना चाहिए? When we learn together, when we learn together, we will learn more. अच्छा, एक बच्चों की जो प्रॉब्लम है, जैसे मैम से मेरा डिस्कशन हुआ और डिस्कशन के बाद में जो मुझे समझ में आता है बच्चों का प्रॉब्लम क्या है, मैम ने बिफोर 10 डेज आपको शेयर कर दिया पीपीटी, बट फॉल्ट किसका है? आप सब अच्छे स्टूडेंट हैं,
You all are good students, but lack of full stop पूरा करिए. Lack of responsibility, lack of accountability. हम अकाउंटेबल भी तो होने चाहिए, उत्तरदायित्व में अपना पता होना चाहिए. तो एक मैंने आप लोग के एक थॉट लिखा है जो डॉक्टर कलाम साहब, APJ कलाम. To dream, discover and dedicate ourselves to innovation and nation building, and the message from श्रीमद् भगवद गीता, अध्याय नंबर 10, यानी चैप्टर नंबर 10, श्लोक नंबर 10. तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयन्ति ते. तेषां में उन व्यक्तियों को, सतत युक्तां जो निरंतर मुझसे जुड़े रहते हैं. मुझसे या कौन है? ईश्वर. भजताम जो भक्ति या समर्पण के साथ मेरा स्मरण करते हैं. प्रीति पूर्वकम प्रेम पूर्वक, ददामी मैं देता हूँ. बुद्धि योगम बुद्धि का योग, ज्ञान की वह शक्ति जिससे सही निर्णय लिए जा सके. ये जिसके द्वारा मां उपयंती वे मेरी ओर आते हैं, मुझे प्राप्त करते हैं. वे व्यक्ति. एक लाइन में अगर हम करें तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि जो लोग मुझे भजते हैं, जो भक्त हैं मेरे, जो समर्पण के साथ मेरे पास आते हैं, अपनी इच्छा लेकर नहीं, केवल किसके साथ? समर्पण भाव के साथ मेरी अर्चना, मेरी पूजा करते हैं, उनको मैं क्या प्रदान करता हूँ? धन दौलत नहीं प्रदान करता हूँ. क्या करता हूँ? बुद्धि का योग देता हूँ, उनको बुद्धि प्रदान करता हूँ. तो क्या चीज भगवान ने भी क्या मांगी है आपसे? समर्पण. विद्या भी क्या चाहती है? मैम क्या चाहती है आपसे? या हम आए हैं तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी से, इतनी दूर से, मैं मुरादाबाद से आई हूँ आपको सिखाने के लिए. मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट करती हूँ? समर्पण. सीखने क्या? समर्पण. जिसमें सीखने का, ज्ञान को प्राप्त करने का, यानी कि ज्ञान पिपासु है, वो ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है, उसकी कौन हेल्प करता है? ईश्वर उसकी हेल्प करता है. तो हमें ऐसा नहीं कि हम नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज तो पढ़ रहे हैं, पर हमारा ध्यान कहीं हो. हमारा ध्यान, हमारा फोकस भी कहाँ होना चाहिए? जो वर्क हम कर रहे हैं. ऐसे मैंने आपको इससे पहले एक श्लोक बताया था, किसी बच्चे को याद है? अध्याय नंबर 2, श्लोक नंबर 47 श्रीमद् भगवद गीता में क्या कहा था? उसमें काम करो. कुरुक्षेत्र में जब महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, उस वक्त श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से क्या कहा था? अर्जुन को क्या याद दिलाया था? कि तुम क्षत्रिय हो, तुम्हें किसका पालन करना है? क्षत्रिय धर्म का. और क्षत्रिय धर्म क्या कहता है? कि अपने कर्म को करो. कर्मण्य वाधिकारस्ते. किसी बच्चे को याद है? मैंने श्लोक पूरा बताया, याद है किसी को? अच्छा साफ बता दो, क्या था उसका मीनिंग? क्या था? कल की चिंता मत करो, आप अपने पाथ पर, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए आगे बढ़ो और फल को प्राप्त करने की चाह छोड़ दो. इसका मतलब ये नहीं कि अपने गोल डिसाइड मत करो. श्री कृष्ण ने ये नहीं कहा कि अपने गोल डिसाइड नहीं करने हैं. गोल डिसाइड करना है हमें. विदाउट एनी गोल आप किधर जाएंगे आपको खुद नहीं पता. अपने गोल डिसाइड करना है, बट गोल डिसाइड करके छोड़ नहीं देना है. उसको कैसे अचीव करना है? हाउ टू अचीव माई गोल. कैसे अचीव करोगे? छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स बनाओगे. उन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने का समर्पण आपके मन में होना चाहिए. अगर ये समर्पण नहीं है तो शायद कहीं ना कहीं बैरियर आए और आप टूट जाए. टूटने से मतलब है, बहुत सारे बच्चे आपने सुना होगा कोटा पढ़ने के लिए जाते हैं, क्या सभी डॉक्टर, सभी इंजीनियर बन जाते हैं? बहुत सारे आपने देखा होगा सुसाइड केस बढ़ रहे हैं. क्यों बढ़ रहे हैं? यूथ में इतना कहना चाहिए एंजाइटी क्यों बढ़ रही है? स्ट्रेस क्यों बढ़ रहा है? कभी सोचा है वो बच्चे जो फ्रस्ट्रेटेड होकर, फ्रस्ट्रेशन का जो लेवल है, वो रिसर्च आप देखिए, कुछ रिसर्च मैंने की है बच्चों पर, तो उनमें एंजाइटी का लेवल बहुत ज्यादा आ रहा है, स्ट्रेस का लेवल बहुत ज्यादा आ रहा है. क्यों? पढ़ाई का स्ट्रेस. लेकिन अगर उसी पढ़ाई को हम इजी गोइंग कर दें,
जैसे हमने एक स्ट्रेटेजी अप्लाई की है, हमारे इंडिया में बहुत कम फॉलो होती है। अगर आप जर्मनी की एजुकेशन देखें, अगर आप जापान की एजुकेशन देखें, ऑस्ट्रेलिया की एजुकेशन देखें, वहाँ बहुत छोटे छोटे बच्चों से इवन की प्रेप लेवल पर होती है, प्राइमरी लेवल पर बच्चों को ये स्ट्रेटेजी से सिखाया जाता है। वहाँ पर हम लोग को इस स्ट्रेटेजी से पढ़ाना ही नहीं आता, हम सिर्फ इसको थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पर पढ़ते हैं, हम प्रैक्टिकली इसको अप्लाई नहीं करते। तो मुझे उम्मीद है कि आप इससे सीखने के बाद कुछ बेटा कहना चाह रहे थे, आप कहोगे? नहीं, तो हम इसको सेशन को क्लोज कर दें। I once again thank you so much Youth Career Global District Organization and Rupert Datta sir and Promita ma'am and all students of the present here. I hope my words inspire you to actively engage with your communities and become torchbearers of social transformation. So thank you, Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, madam, for your nice presentation, nice lecture on this workshop organized by Youth Career Global Organization. Workshop on collaborative learning, implementing the Jigsaw strategy in diverse classrooms. And here I am really thankful to Dr. Raghav Chandra Nath, President of Youth Career Global Organization, for organizing such a nice workshop and for this on this nice topic. And lastly, madam told that according to our जो श्री कृष्ण ने बोला था कि काम करते जाओ, रिजल्ट के बारे में मत सोचो, right? But you know, this is the era of, according to NAC and according to NIRF, according to NEP 2020, this is the era of outcome-based education. So always when we start any work, okay, we need to know about our goal. We should have the goal. We should have the target to fulfill. But when you are working, don't think about the result. It's about you. When you are working hard, when you are doing something, don't think about the result. Okay, that was the takeaway of this thing. And collaborative learning, it is a nice process. This is a learning process. And on this topic, you learn how to incorporate this learning session. And in different countries, different developed countries, even some of the developing countries also followed this Jigsaw method and Jigsaw strategy. So I think all of you enriched out of this session. So thank you once again to Dr. Nahid B, Assistant Professor, Tirthankar Mahavid University Education Department. And also I want to thank two young ladies came with her. Madam, thank you for visiting our department, and thanks to our my only colleague Paramita for organizing this workshop within a very short period, very nicely. And thanks to our students, dear students, for cooperating with us for organizing this workshop. Thanks. Thank you so much. আচ্ছা, চলে এসো একটু আমাদের ফটো আমরা তারপর On the dais or on? Yes, remove the chairs, please remove the chair. এই একটু এই চেয়ার Please take care of this. চেয়ারগুলো একটু নামিয়ে দাও।
এটাকে টেবিলটা পেছিয়ে দাও খালি হ্যাঁ